Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. Welcome to today's webinar on Crypto 101, Decoding Blockchain and Digital Currency. I am Lydia Farooq Watu, Joint Secretary Information, the New Visionaries IIUI chapter, your host for today's webinar. We are going live now on Facebook. Thank you so much to all of you for joining us. Before we begin the session, I would like to give you a brief introduction of the chapter. The New Visionaries International Islamic University Islamabad chapter is a sub-organ of TNV Youth Forum, mainly focused on social sciences students with the ambition to provide them with a platform which will help them discover and polish their skills, unlock their full potential, engage with like-minded peers, and make a meaningful impact on their communities. Please join me in welcoming our esteemed speaker, Mr. Safiullah Ghori, who brings a wealth of knowledge and experience in crypto. He is a barrister and practicing lawyer in Islamabad and is currently the managing partner at Esquire Legal. Mr. Safi is a renowned legal expert, head of legal for a diverse portfolio of global fintech and crypto enterprises, and has successfully navigated regulatory landscapes, obtained licenses, and advised on Web3 based contracts in Java, the MENA region, the Caribbean island, and emerging economies in Asia. Mr. Safi's deep understanding of various legal, regulatory, political, business, social, and international issues makes him a sought-after advisor for international companies, analysts, think tanks, and other entities interested in the intersection of upcoming technologies and politics. We could not have had a more experienced speaker to talk on this subject today. Assalamu alaikum, sir. How are you doing? Thank you for joining us today. Thank you, Valija, for having me. It's a real pleasure being here, and I'm very excited to talk about this. This is something that I'm deeply interested in. So, I'm happy to share my experience and my knowledge on whatever it is, and I hope that whoever is listening in can go back having learned something from here. Inshallah, sir. The partner of the webinar would be in Q&A form, where we'll be having basic ones to the complex one questions. We will begin our webinar now. Towards the end of the webinar, we will be having a Q&A session. I highly encourage everyone from the audience, please leave any questions you have in the chat box. We will be taking them up with Mr. Safi at the end, inshallah. We are here to make this session as interactive and informative as possible. Yes, sir. Firstly, we have heard about your extensive experiences and qualifications. Today, please tell us about yourself and your journey and your command on today's topic under discussion. Okay, so it's very interesting. I've had quite a journey into this. So I started off as मैं उर्दू में switch कर रहा हूँ. I think that might Okay, be a sir. little Okay. Okay, sir. ज़्यादातर लोग Sure. आसानी से समझ सकेंगे. अच्छा, तो इंग्लैंड से मैंने बारह लॉ किया तकरीबन 2006 में. उसके बाद LLM किया. इंग्लैंड में प्रैक्टिस करता रहा कुछ देर. फिर न्यूयॉर्क चला गया, उधर प्रैक्टिस किया. उधर से वापस आया पाकिस्तान एक बहुत फेमस केस के लिए. ये केस था NRO केस, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस. आपको याद होगा, अगर जो भी वकला हैं उनको तो डेफिनेटली पता होगा, जो कि नॉन लॉयर्स हैं. आप लोग थोड़े से यंग हैं शायद ऑडियंस, तो शायद एग्जैक्टली याद ना हो, मगर मुशर्रफ ने एक लॉ बनाया था जिसमें उन्होंने तमाम नवाज शरीफ, जरदारी सबको एक ब्लैंक चेक दे दिया था कि अब आप जो भी आपके खिलाफ पुराने केसेस हैं सारे माफ हो जाएंगे. तो इसीलिए आज भी पॉलिटिकली बात होती है एनआरओ नहीं देंगे. तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे फिर अमेरिका से बुलाया वापस इधर एनआरओ केस में. उन्होंने कहा कि आप हमें एडवाइस करें. So I was an advisor to the Supreme Court, amicus curiae, in the NRO case. काफ़ी अच्छा था. It got a good boost. It was a very famous case in Pakistan. So I started working here in Pakistan then. तो इधर फिर पाकिस्तान में मैंने काफ़ी बड़े बड़े कुछ केसेस किए. मेरा एक केस काफ़ी बड़ा केस था PIA की प्राइवेटाइजेशन का. वो भी काफ़ी बड़ा गया था. पैनामा लीक्स केस में मैं PTI का लॉयर था. वो भी उस केस में भी मैंने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन कमीशन के अंदर. और पार्क लेन केस भी था. मतलब काफ़ी बड़े बड़े जो कुछ लीगल केसेस थे. फिर जब ये कर ही रहा था तो कुछ फिनटेक कंपनीज पाकिस्तान में आना शुरू हुई. आपने नाम सुना होगा, सादा पे, किस्त पे. इन लोगों को मैंने एडवाइस करना शुरू किया. जो नए बैंकिंग और जो नए पाकिस्तान के अंदर डिजिटल फाइनेंस की जो नई नई चीज़ें बन रही थी, जैज़ कैश आ रहा था, इजी पैसा आ रहा था, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर ना एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन आ रही थी.
तो उसमें जब मैंने एडवाइस करना शुरू किया तो मुझे मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के इंटरसेक्शन में कि अब क्या होता क्या है असल में। मतलब मैं तो लीगली एडवाइस कर रहा था, बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, फाइनेंस क्या चीज़ है, पैसा क्या चीज़ है। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझना कि फाइनेंशियल सिस्टम चलता किस तरह है। ये जो सारे का सारा एक स्टेट बैंक है, जो पैसे आपके बना रहे हैं, करेंसी आ रही है, ये फाइनेंशियल सिस्टम आया कहाँ से। तो जब ये मैंने समझना शुरू किया तो तब मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस कराया ब्लॉकचेन और डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी वगैरह से। एंड मेरे लिए एक रेवोल्यूशन थी। एक मेरे ख्याल में हम लोग जब बात करते हैं ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की, तो वो उतने ही रेवोल्यूशनरी है जिस तरह पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था, लोग किसी को एक 4 बकरियाँ और 1 गाय Hmm. एक्सचेंज करते थे। फिर दरमियान में जब करेंसी आ गई तो एक रेवोल्यूशन थी। तो इसी तरह ये क्रिप्टो करेंसी एक रेवोल्यूशन है। ये अब इंशाल्लाह एज़ इट प्रोग्रेसेस तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये रेवोल्यूशन क्यों है। अगर जब ये आया और मुझे समझ में आया कि हो क्या रहा है, और मेरे जो क्लाइंट्स थे जो कि ज़्यादातर फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, वो सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी में आ रहे थे, तो उनके साथ-साथ मैंने भी छलांग मार दी। तो बस मैंने फिर उसके बाद नहीं वापस देखा। अब हमारी एक ब्रांच यूएसए में है, एक हमारी ब्रांच चाइना में है, और हम ज़्यादातर हमारे जो बड़े क्लाइंट्स हैं क्रिप्टो करेंसी के हैं, वी ऑपरेट इन क्लोज टू 22 कंट्रीज़। और उसमें बस ये कि हम उनको लीगल एडवाइस दे रहे हैं और गवर्नमेंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं, या उनको भी असिस्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी लॉज वगैरह समझा बनाने में, और कंपनीज को तो एडवाइस करते ही करते हैं समझने में कि क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से चल सकती है। So we are very delighted to hear all your experiences. And now we are coming to the topic. Exactly are cryptocurrencies and how do they differ from traditional currencies? अच्छा, क्रिप्टो करेंसी से पहले ना मैं एक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ वेब थ्री का। वेब थ्री इज लार्जर कॉन्सेप्ट। वेब थ्री के नीचे है क्रिप्टो करेंसी। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो हम क्रिप्टो करेंसी पे आते हैं। मतलब क्रिप्टो करेंसी जस्ट Yes. वन थिंग इन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसी तरह है जिस तरह इंटरनेट था। इंटरनेट आया और एकदम इंटरनेट बूम आया, सारी जिंदगी दुनिया ट्रांसफॉर्म हो गई, तो लिटरली उतनी ही बड़ी चीज है ब्लॉकचेन। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों। शुरू में जब इंटरनेट आया, वो वंस अगेन मैंने कम से कम जब इस्तेमाल करना शुरू किया, आप लोग तो बहुत ही छोटे होंगे उस वक्त, या पैदा भी शायद ना हुए हो। मैंने जब इस्तेमाल करना शुरू किया इंटरनेट, तो उसको वेब वन कहते थे। वेब वन में आप सिर्फ इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स में चीज़ें पढ़ सकते थे, यानी कि आप किसी वेबसाइट चले गए, अब आप सिर्फ पढ़ सकते हो। तो वेब वन कहते हैं रीड ओनली। तो वेबसाइट विजिट की, इंफॉर्मेशन ले ली, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल यू कुड डू। वेब वन के साथ ही वेब वन में ईमेल्स आ गई थी। वेब ईमेल्स आप कर सकते थे, भेज सकते थे, मगर दैट्स अबाउट इट। वेब टू जो है वो एक रेवोल्यूशन आई। वेब टू में आया रीड एंड राइट। अब आप राइट भी कर सकते हैं, यानी कि सोशल मीडिया आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, स्नैपचैट आ गया, व्हाटएवर, जो भी आप लोग, ट्विटर, जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हो। अच्छा, वो क्यों है? क्योंकि अब सिर्फ एक बंदा बैठ के नहीं लिख रहा। पहले तो होता था एक बंदा लिख रहा है, बस आप वेबसाइट पे जाके पढ़ रहे हो। अब आप भी लिख सकते हो। सो आपने भी लिखना शुरू कर दिया, आपके स्टेटसेस आना शुरू हो गए, आपकी तस्वीरें आना शुरू हो गई, आपकी वीडियोस आना शुरू हो गई टिकटॉक के ऊपर। आपने देखा कि इन्फ्लुएंसर्स बनना शुरू हो गए। एक पूरी नई जनरेशन इंटरनेट की बनना शुरू हो गई, जो कि क्रिएटर इकोनॉमी थी, यानी कि अब लोग खुद क्रिएट कर रहे थे चीजें। कोई ऊपर बैठा हुआ एक बंदा नहीं था जो कि बस इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि नहीं ये ले लो। अब वलीजा भी बोल सकती है, उन्नीब भी बोल सकता है, हर किसी की अपनी आवाज हो सकती है। तो एक बड़ी पावरफुल चीज बन गई कि इंडिविजुअल क्रिएटर्स बन गए। तो वेब वन रीड ओनली, वेब टू रीड एंड राइट। अच्छा, अब राइट तो आप कर रहे हो और ठीक है, पीपल कैन रीड वट एवर यूर राइटिंग, मगर मसला ये था कि सारे प्रॉफिट्स लेके जा रही थी फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, जो भी सर्विसेज हैं। काम करे सारी की सारे वलीजा, वीडियो बनाए वलीजा, कंटेंट बनाए वलीजा, मेजोरिटी पैसे लेके चले जाए फेसबुक, मेजोरिटी पैसे लेके चले जाए यूट्यूब। दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम वाज। द प्रॉब्लम वाज कि लोगों को जो 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 काम कर रही हैं उनको बस थोड़े थोड़े रिवॉर्ड्स दे दिए। हाँ ठीक है, आप हमारे गोल्डन सब्सक्राइबर बन गए, आपको थोड़े बहुत पैसे मिल गए। वो इन्फ्लुएंसर्स कुछ पैसे खुद पर्सनल डील्स वगैरह करके कमा सकते थे, मगर दे वर नॉट द ओनर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म। वेब थ्री इज रीड राइट एंड ओन, यानी कि अब जो आप कंटेंट इंटरनेट के ऊपर डालोगे वो आप ही का होगा। दैट इज गोइंग टू बी योर ओनरशिप, और किसी का भी नहीं होगा। उसको फेसबुक डिलीट नहीं कर सकता, इंस्टाग्राम डिलीट नहीं कर सकता, ट्विटर डिलीट नहीं कर सकता। दैट इज गोइंग टू बी ऑन अ प्लेटफॉर्म जो कि आपका अपना प्लेटफॉर्म है। बिग रेवोल्यूशन, क्योंकि अब इससे जो जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी मर्जी से अनलिमिटेड चीजें क्रिएट कर सकते हैं। सो अब आपको जरूरत नहीं होगी गोइंग फॉरवर्ड यूट्यूब जैसी चीज़ों की, फेसबुक, ये अभी भी इवन राइट नाउ जिन चीज़ों के ऊपर हम स्ट्रीम कर रहे हैं, ये चीज़ें रिडंडेंट होने वाली हैं। एक पूरी पूरी एक नया एक सिस्टम आने वाला है जिसमें डायरेक्टली हम उसको मोनेटाइज कर सकेंगे, उसको ओन कर सकेंगे, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे पास होगी। तो ये ऑब्वियसली एक बड़ी एक अट्रैक्टिव सी सिचुएशन बनती है।
अब ये सारी चीजें होती हैं ब्लॉकचेन से। सो ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन को समझने की जरूरत है। पहले था इंटरनेट। इंटरनेट क्या है कि मेरा कंप्यूटर 10 और कंप्यूटर के साथ मिला हुआ है, कनेक्टेड है, तो वो बन गया इंटरनेट। अब उसी इंटरनेट के ऊपर मैं एक और लेयर ऑफ इंटरनेट बना रहा हूँ, उस लेयर को मैं ब्लॉकचेन कह रहा हूँ। समझ लें, मैं आसान जबान में सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी इंटरनेट के ऊपर एक और लेयर ऑफ इंटरनेट है जो जिसके नए रूल्स हैं। वो प्रीवियस रूल्स हमने हटा दिए, नए रूल्स बना दिए कि अब से ये रूल्स होंगे, इंटरनेट गवर्न करेगा, इस तरीके से होगा, कंप्यूटर्स एक दूसरे से इस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, वो एक ब्लॉकचेन फॉर्मेट होगा, उसमें इंटरेक्ट करेंगे। वो मैं आपको समझाता हूँ लेटर ऑनवर्ड्स के ब्लॉकचेन फॉर्मेट क्या है। मगर ब्लॉकचेन फॉर्मेट में इंटरेक्ट करेंगे तो उस कंसेंसस मैकेनिज्म को उन्होंने ब्लॉकचेन ओवरऑल लफ्ज दे दिया। और उसके ऊपर अब आप करेंसी भी बना सकते हैं, आप आर्ट भी बना सकते हैं, वीडियोस भी, एनीथिंग दैट यू कैन डू ऑन द इंटरनेट यू कैन डू देयर एज वेल। तो इसलिए अब आप उसको वेब3 कहते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। Okay, so now we are moving forward. Most of the well-known cryptocurrencies and their unique feature, and you have already explained blockchain, but can you give us examples of successful blockchain projects outside of the financial sector? हाँ, सो देयर आर टन्स ऑफ देम। सी हम इसीलिए हम कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज को लोगों को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी है सिर्फ जो कि ब्लॉकचेन का काम है, मगर ब्लॉकचेन के ऊपर तकरीबन ही कुछ भी हो सकता है। सो फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं पर्सनली बड़ा फैन हूँ एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट पॉलीगॉन का। पॉलीगॉन एक संदीप नायवाल नामी इंडियन बंदा है, उसने डेवलप किया है। उसने क्या किया, उसने अपनी जितनी भी एफआईआर्स वगैरह हैं, जो अब आप डिजिटाइज कर रहे हैं सिस्टम को, अब हम बात कर रहे हैं कि डिजिटाइज कर दो, कोर्ट सिस्टम को डिजिटाइज कर दो, जुडिशल सिस्टम को, पुलिस को, ब्यूरोक्रेसी को, हर चीज की डिजिटाइजेशन की बात होती है। तो उसने इंडिया की जो पुलिस एफआईआर सिस्टम है वो उसने ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया। फायदा क्या, इतना बड़ा एडवांटेज है कि अब कोई किसी की एफआईआर को फर्ज नहीं कर सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता। होता है ना, कोई प्रेशर डाल के कहना कि नहीं Hmm. एफआईआर कर दो, जला दो। हमारे तो मुल्क में आपने देखा है कि पूरी पूरी बिल्डिंग जल जाती हैं, रिकॉर्ड्स गायब हो जाते हैं। ये चीजें ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं हो सकती। ब्लॉकचेन का जो जो सेंट्रल एस्पेक्ट है व्हिच मेक्स ब्लॉकचेन अमेजिंग, ब्लॉकचेन काम किस तरह करती है, पहले सर थोड़ा सा इसको समझ लें कि ब्लॉकचेन का क्या वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, फिर हम बाकी तमाम चीजों पे एक्सट्रैपोलेट कर सकेंगे। सो ब्लॉकचेन इस तरीके से काम करती है कि वो एक कंसेंसस मैकेनिज्म होता है। वो ये होता है कि अभी इंटरनेट है, नॉर्मल इंटरनेट, मैं आप इस तरह बात को समझाता हूँ। नॉर्मल इंटरनेट है, मैंने इंटरनेट के ऊपर कोई चीज डाली, वो चीज मेरे कंप्यूटर के ऊपर स्टोर्ड है। इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम यानी कि सेंटर मेरा कंप्यूटर है। मैं अपने कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर जो है लेट्स से वो होस्ट कर रहा है वेबसाइट। मेरा कंप्यूटर हैक हुआ, वेबसाइट गई। मेरा कंप्यूटर होस्ट कर रहा है हबीब बैंक के सारे सारे रिकॉर्ड्स। मैंने हबीब बैंक के सारे सारे जो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो मैंने अपनी हार्ड डिस्क पर डाल दिए। मेरी हार्ड डिस्क ऐसे ही है ना। मतलब एक सिंपल सी बात है जो कि आप समझ सकते हैं। लेट्स से मेरा कंप्यूटर सर्वर है, मेन सर्वर है, जिसके ऊपर आपका स्टेट बैंक के तमाम रिकॉर्ड्स होते हैं। स्टेट बैंक के नहीं चले, नेपरा के, जिस जो भी आपने Hmm. व्हाटएवर यू आपके एचईसी के रिकॉर्ड्स मैंने अपने कंप्यूटर पे डाले हुए हैं। मेरा कंप्यूटर हैक भी आज हो सकता है, मेरा कंप्यूटर क्रैश भी हो सकता है, मेरे कंप्यूटर को कुछ भी हो सकता है, वायरस आ सकता है, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और जो दुनिया इस तरीके से जा रही है, साइबर सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो हो रही हैं, रेगुलर इश्यूज हैं। लोग उसके ऊपर एंटी वायरस बना रहे हैं, फायरवॉल्स बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर वो चीज़ें काम नहीं करी क्योंकि हैकर्स फिर भी हैक कर देते हैं। और हमने देखा है कि इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट इंडिया हैक कर देता है, Hmm. हम जाके इंडिया की वेबसाइट्स हैक कर देते हैं हमारे पास, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन एंटी हैकर्स भी बैठे हुए हैं, तब भी ये चीजें हो रही हैं। तो उसका सोल्यूशन ब्लॉकचेन किस तरह, ब्लॉकचेन का बड़ा बड़ा एक मजे का जो जो प्रोसेस है काम करने का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। होता है इस तरह कि सारे के सारे कंप्यूटर जो हैं वो एक मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको बात Hmm. समझ में आएगी। मिसाल के तौर के Yes. ऊपर मैंने वलीजा को एक मोबाइल फ़ोन देना है और मैंने कहा कि ये मोबाइल फ़ोन होगा 100 रुपीज़ का। अब अगर एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है तो वो रिकॉर्ड हो जाएगी कि सफ़ी ने वलीजा को 100 रुपीज़ का फ़ोन दिया, बस एक सेंट्रल रिकॉर्ड है। वो फज भी हो सकता है, उसको हैक भी हो सकता है, क्रैश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ब्लॉकचेन में जब मैं वलीजा को ये फ़ोन दे रहा हूँ, तो जो ब्लॉकचेन के ऊपर तमाम कंप्यूटर्स हैं, तमाम के तमाम कंप्यूटर्स हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं शायद 500 मिलियन Hmm. कंप्यूटर्स, वो सब गवाही देंगे। वो कहेंगे हाँ, हमने देखा कि सफ़ी ने वलीजा को फ़ोन किया। यानी कि अब अगर आपने उस रिकॉर्ड को तोड़ना है तो आपने उन तमाम 500 मिलियन कंप्यूटर्स को हैक करना है। एंड दैट्स इम्पॉसिबल फॉर एनी हैकर। बात ही खत्म हो गई ना, मतलब दैट दैट कैन नेवर हैपन। इसीलिए ब्लॉकचेन को कहा जाता है अनहैकेबल, इम्यूटेबल, ट्रांसपेरेंट लेजर। ट्रांसपेरेंट क्यों है वो? क्योंकि वो आपके सामने पड़ा हुआ है, हर कोई देख सकता है जाके। वो एक रिकॉर्ड उसका इंटरनेट पर वो ब्लॉकचेन पे आ जाता है। अब आप जाके उसको देख लें, आप देख लें कि सफ़ी ने वलीजा को दिया कि नहीं दिया। So that is why it can never be पाँच हो changed. गए. Times can't be times
टाइम स्टैम्प भी उसका लिखा होता है, कोई उसको ना चेंज कर सकता है, ना उसको कोई जो है किसी तरीके से फर्ज कर सकता है। दैट इज, अब जब आपके पास एक लेजर आ गया, जब एक रिकॉर्ड आ गया, अब आप उस रिकॉर्ड को किसी भी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं जहां रिकॉर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। जब आप बात करिए ना रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की, अदर देन क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो हम्म, करेंसी एक यूज है कि आपने और मैंने स्टोर वैल्यू क्या किया। मिसाल के तौर के ऊपर रियल वर्ल्ड केसेस मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड्स रखते हैं, आपके कोर्ट्स रूम्स रखती हैं, कोर्ट के रिकॉर्ड आप ब्लॉकचेन के ऊपर डाल सकते हैं, जो कि डाले जा रही हैं इंडिया में। दुबई पूरा का पूरा इस वक्त चल रहा है कोर्ट रिकॉर्ड्स के ऊपर। एस्टोनिया ने अपना पूरा पासपोर्ट ऑफिस डाल दिया ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी कि जिसके भी जो भी नेशनल आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो सारे ब्लॉकचेन पे हैं, ताकि वो कोई उसको आके अमेंड ना कर सके, चेंज ना कर सके। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि यूएसए में, कनेक्टिकट में, न्यूयॉर्क में जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है वो उन्होंने सारी ब्लॉकचेन पे डाल दिया, ताकि लोग जितनी भी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिजली का रिकॉर्ड सारा का सारा बिल्कुल ही सेफ रहे। एनी दैट यू वांट टू मेक श्योर कि सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो किसी भी चीज की, आप उसको ब्लॉकचेन में डाल देते हैं। और सबसे जो सिक्योर चीजें होती हैं वो आपका पर्सनल डेटा होता है, वो आपका फाइनेंशियल डेटा होता है। पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा तो सारा का सारा जा ही रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर। okay. Have you any progress in Pakistan on blockchain? नहीं, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बहुत पीछे रह गया है इस सिलसिले में। पाकिस्तान में जो द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इज़ कि यहाँ पे अभी तक रेगुलेटर्स को समझ भी नहीं आया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। वो इसी कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं कि करना क्या है। इसके लिए एक स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन अथॉरिटी बनी हुई है। स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन अथॉरिटी का मैंडेट है टू लुक इनटू डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी एंड आल्सो ब्लॉकचेन। बात होती है, एसईसीपी ने भी फ्रैक्शनाइजेशन के कुछ रेगुलेटरी लाइसेंसेस वगैरह निकाले जिसमें वो बात करते हैं डीएलटी की, मगर अभी तक सिर्फ बात हो रही है। और अब तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ गया। आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को कह दिया कि आप फौरी तौर पे इसको देखें, क्योंकि पाकिस्तान अब वो जो हमारी जो नई ट्रांच आने वाली है, हमें अब इस वक्त 1 बिलियन या 3 बिलियन की, 1 बिलियन सुना है, कल परसों मिल जाएगा, 3 बिलियन टोटल मिलना है। तो वो उन्होंने अब इसको इनकम्बेंट कर दिया कि आपने ब्लॉकचेन को और क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करना है पाकिस्तान में, वरना हम नहीं आपको पैसे देने वाले। और उसकी वजह ये है कि अगर आप एक चीज़ को नहीं समझेंगे तो वो चीज़ आपके खिलाफ होगी। एनीथिंग, इंटरनेट का अच्छा भी यूज़ है, बुरा भी यूज़ है, हम सब जानते हैं। इंटरनेट कैन बी गुड फॉर अस, कैन बी बैड फॉर अस, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज़ इट। ब्लॉकचेन भी इसी तरीके से है। इट कैन बी यूज्ड फॉर गुड, इट कैन बी यूज्ड फॉर इविल। आप उसको या तो सही तरीके से इस्तेमाल करो, या फिर जो बुरे लोग हैं, जो अनरेगुलेटेड रात, जो बैड एक्टर्स हैं, टेररिस्ट हैं, मनी लॉन्ड्रर्स हैं, वो उसको इस्तेमाल करेंगे, उनको तो आप नहीं रोक सकते। तो इसी वजह से इस चीज़ को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ इट। अच्छा, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, किधर से निकलती है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, सो लेट्स गो बैक, तो कि थोड़ा सा ना हमें करेंसी का प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ में आए। एक दफा करेंसी समझ में आएगी तब हम क्रिप्टो करेंसी को समझ सकते हैं। करेंसी ऐसे है कि शुरू में बार्टर सिस्टम था, इंसान जो है किसी को कोई चीज़ देता था। अब वो मिसाल के तौर पे वही हम बात करते हैं कि जनाब 4 बकरियां 1 गाय। अब मसला ये है कि ये एक बड़ा बुरा सिस्टम था। वो 4 बकरियां 1 गाय, आपने सिस्टम सेट तो कर दिया, मगर आप लेकर आए और एक बकरी को पोलियो हुआ है। बंदा परेशान है, कहता है कि यार तुम, मैंने तो 4 बकरियां कही थी, मगर मेरा तो मतलब 4 हेल्दी बकरियां थी, तुम आगे से हम्म, पोलियो शुदा उठा के ले आए हो। वो लड़ाइयाँ इस बात के ऊपर होती रहती थी। सो दे फिगर्ड कि सिस्टम बड़ा खराब है। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, सिस्टम को आसान करते हैं। हम एक अपनी तरफ से आर्बिट्रेरी वैल्यूज डाल देते हैं हर चीज़ के ऊपर। हम कहते हैं कि एक गाय की वैल्यू होगी 20 मिसाल के तौर के ऊपर, एक बकरी की वैल्यू होगी 5। अब हम बस हमने अब उसके मुताबिक देखना है कि ये बकरी 5 के बराबर है कि नहीं है, हेल्दी है। अगर हेल्दी बकरी होगी 5, तो कम हेल्दी हम्म, होगी तो 4। इस तरह की, मतलब गाय है वो सही है तो 20, थोड़ी सी कम है तो 19। इस तरीके से हम इंडिविजुअल वैल्यूज देना शुरू करेंगे। अच्छा, ये वैल्यूज हम रिकॉर्ड करेंगे एक लेजर के ऊपर। ये एक, अब एक बंदा बैठा होता था वही पुराने जमाने में किसी गांव में, हम्म, वो रिकॉर्ड करता था। वो कहता था कि उसके पास एक रिकॉर्ड होता था। और जो सबसे पुराने आप देखें ना, सुमेरियन, बेबीलोन में, इजिप्ट के अंदर, जो बड़े मजे की बात है, पिरामिड्स के अंदर जो रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं वो इसी किस्म के रिकॉर्ड्स हैं कि कितने कितने गंदम की बोरियां आ रही हैं। वो रिकॉर्ड सारे के सारे एक लेजर में रिकॉर्ड होते थे। वो जो लेजर है, दैट इज द टोटल वेल्थ दैट यू हैव। यानी कि अब इसी तरह है ना कि टोटल जब सारी चीजों हम्म, का आप सारी चीजों का आप रिकॉर्ड कर दिया तो वो आपकी बन गई टोटल वेल्थ। अच्छा, कुछ लोग थे उन्होंने रियलाइज किया कि ये तो बड़ा स्मार्ट तरीका है कि अगर वेल्थ हमें पता है, एक रिकॉर्ड है हमारे पास वेल्थ का, तो हम तो उसको चेंज एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो वो मिसाल के तौर पे एक गांव गए, उसने कहा कि तुम्हारी टोटल वेल्थ मिला मिलू के लेट्स से बनती है 1000 यूनिट्स।
ये लो, वो 1200 यूनिट हमें टोटल वेल्थ का ये रिकॉर्ड दे दो, अब ये तुम्हारी सारी वेल्थ हमारे पास है। उसको कोई या सोना दे दिया, कोई चीज दे दी, समथिंग ऑफ वैल्यू, जो कि उसकी टोटल वेल्थ की है, और वो वेल्थ का रिकॉर्ड लेके चले गए किसी और जगह, और उन्होंने जाके उसको कहा कि ये वेल्थ का रिकॉर्ड हम उस जगह पे एग्जिस्ट करता है, मैं आपको बेचने के लिए तैयार हूँ 1500 का। तो वो ये इसको इसको कहते हैं बैंकिंग। इधर से बैंकिंग कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि वो एक रिकॉर्ड ऑफ वेल्थ, ये लेजर ऑफ वेल्थ जिसको हम कह सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह उसने मूव करना शुरू किया। अब ये छोटे छोटे बैंक्स बन गए। ये इनिशियली ये बैंक्स बनाए भी यहूदियों ने। ये जब सारे के सारे आए थे फ्रॉम इजिप्ट, इजिप्शियन एराज में, ये उधर कैनान से, और ये जो इलाका है आज इसराइल का, उस जगह से है, तो उन्होंने नया सिस्टम डेवलप किया। और ये इनकी एक्चुअली स्ट्रेंथ भी थी कि वो जिधर भी जाते थे उनके पास एक रिकॉर्ड होता था। जिस तरह हम ब्लॉकचेन की बात करें ना, कि पूरे हर किसी के पास रिकॉर्ड होते हैं, सारे कंप्यूटर्स के पास, ये लोग सब अपने पास एक रिकॉर्ड रखते थे, ताकि वो एक बात क्लियर हो जाए कि हाँ, आप जिस बंदे के पास जाओगे वो दूसरा बंदे के पास भी कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड होगा। तो बैंक में यही होता है ना, कि आप किसी ब्रांच में चली जाओ, बैंक के पास एक आपका सेंट्रल रिकॉर्ड पड़ा होता है। ये तो नहीं है कि वो आप पिंडी की ब्रांच में जाओगी तो वो आपको कहेंगे कि नहीं, आपका रिकॉर्ड तो लाहौर की ब्रांच में पड़ा हुआ है, उधर ही आप जाओ। इस तरह नहीं होता, दे ऑल मेंटेन अ रिकॉर्ड। तो इस तरीके से एक रिकॉर्ड की मेंटेनेंस का काम बैंक्स ने शुरू किया। अच्छा, बैंक्स फैलना शुरू हो गए, बैंक्स के ऊपर फिर ऑफ कोर्स इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स वगैरह डेवलप हो गया, दुनिया बड़ी तेजी से आगे जाना शुरू हो गई। तकरीबन लगभग 15-14 सेंचुरी के आसपास स्टेट्स ने सोचा कि यार ये क्या मजाक है, ये इंडिविजुअल्स क्यों बैठ के कर रहे हैं सारा का सारा काम, हम स्टेट हैं, हम पावरफुल हैं, हम क्यों ना करें, हम एक बड़ा बैंक बनाएंगे, सबसे बड़ा बैंक हमारा बैंक होगा, और वो बैंक कंट्रोल करेगा तमाम बैंकिंग को। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया स्टेट बैंक का। अब स्टेट बैंक्स ने रिकॉर्ड्स मेंटेन करना शुरू कर दिया। स्टेट बैंक्स ने कहा हम टोटल रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, और उस स्टेट बैंक से एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। नेशन स्टेट्स जो है वो पहले हमारे पुराने जमाने में इस तरह मुल्क नहीं होते थे डिफाइंड बाउंड्रीज के साथ, बस एम्पायर्स ही होती थी, बादशाह होते थे, उनकी जमीनें होती थी, इधर उधर हमले कर रहे होते थे। अब उन्होंने डिफाइन करना शुरू कर दिया कि ये बाउंड्री होगी, ये एरियाज होंगे, और ये हमारी करेंसी होगी। ये अब उन्होंने अपनी करेंसी भी साथ ही अपनी ही मर्जी की करेंसी निकालना शुरू कर दी, जिसके ऊपर अपने स्टैंप्स होते थे, अपनी चीजें होती थी, उसकी अपनी वैल्यू होती थी, और वो करेंसी निकलती थी उसी रिकॉर्ड से जो आपको टोटल रिकॉर्ड था। यानी कि टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन वो आप कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रिकॉर्ड्स दैट यू हैव, द लेजर दैट यू हैव। अच्छा, अब मुल्क आहिस्ता आहिस्ता, ऑफ कोर्स आपको पता है, हम भी एक मुल्क में ही रहते हैं, मुल्क का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया, पूरी दुनिया इस वक्त मुल्कों में बटी हुई है। मुल्क मगर बहुत सारे फेल हो जाते हैं, हम ये भी देख रहे हैं, कई मुल्क तबाह हो जाते हैं, कई मुल्क फेल हो जाते हैं, कई मुल्क इतने करप्ट होते हैं कि उनकी करेंसी में इतनी इन्फ्लेशन आ जाती है कि वो करेंसी यूजलेस हो जाती है। हमारा मुल्क इस वक्त एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, जिसमें इस वक्त लगभग 30% इन्फ्लेशन चल रही है। तो एक आम आवाम सोचती है कि हमें क्या जरूरत है कि हम इस मुल्क का पैसा लें, फिर हमारे लोग जो है वो कहते हैं नहीं नहीं, पाकिस्तान का पैसा ठीक नहीं है, यूएसए का पैसा लेते हैं, हम डॉलर्स लेते हैं, डॉलर्स में कमाओगे, डॉलर्स में कमाओ, ये तो रुपीज ही खराब है। इसी तरह हो रहा है ना। तो अब लोग रियलाइज करते हैं कि हमारा मुल्क की तो करेंसी फेल कर रही है, ये तो करेंसी बुरी है। अच्छा, अब डॉलर्स में भी वही इशू है कि आप डॉलर्स में कमाना शुरू करो। अभी तो इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, और अमेरिकन डॉलर जो है वो बहुत कामयाब है। मगर बहुत सारी करेंसीज दुनिया के नीचे जा रही हैं। लेबनीज पाउंड तबाह हो गया, अर्जेंटीना का जो लीरा है वो तबाह हो गया। ये हमने देखा, अपनी अपनी आंखों के सामने हम देख रहे हैं कि श्रीलंका में आपने देखा डिफॉल्ट हो गया, वो उनकी करेंसी तबाह हो गई। पाकिस्तान का भी कुछ पता नहीं है, डिफॉल्ट कर जाए, हो सकता है हमारी भी करेंसी तबाह हो जाए। ऐसे में आइडिया आ जाता है क्रिप्टो करेंसीज का। क्रिप्टो करेंसीज का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सिंपल सा है कि लोग इंडिविजुअली मिलके, दुनिया भर के लोग मिलके करेंसी बना रहे हैं, जिसमें किसी एक स्टेट का नहीं है, और वो करेंसी का बेस क्या है? कोड है, बेसिक कंप्यूटर कोड। एक बंदा है सतोशी नाकामोटो, उसने एक वाइट पेपर लिखा, वाइट पेपर के अंदर उसने प्रॉपर दिखाया कि ये मेरा कोड होगा, ये मेरा पूरा पूरा कोड है, ये मैं डाल रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर, ये, और इससे मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक कॉइन, उसका नाम रख रहा हूँ बिटकॉइन। और वो बिटकॉइन जो होगा वो एक इस तरीके से काम करेगा, जो करेंसी के जो जिस तरीके से हम करेंसी चलाते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर चलाते हैं, उसने कहा कि ये बस सेल्फ गवर्निंग कोड होगा। सेल्फ गवर्निंग चीजें होती है ना बहुत सारी, जो कि खुद ही सेल्फ कंटेन्ड होती हैं, जो कि खुद ही जनरेट करती रहती हैं। तो उसने एक सेल्फ कंटेन्ड कोड बना के उसने करेंसी बना दी, और वो करेंसी की अब अडॉप्शन इतनी हाई हो गई है इस वक्त। ऑफिशियली बिटकॉइन बिटकॉइन मैं तमाम क्रिप्टो करेंसीज की बात नहीं, सिर्फ बिटकॉइन हैज ओवरटेकन फेसबुक इन वैल्यू, गूगल को ओवरटेक करने वाला है। अब आप खुद सोचें, इट हैज बिकम मोर वैल्यूएबल देन ऑल द सिल्वर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की चांदी से ज्यादा इस वक्त वैल्यूएबल बिटकॉइन सिर्फ एक अकेली करेंसी है। और टोटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप उठाएं तो शायद आप पता नहीं कितने आगे जा चुका हूँ, मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता, बट क्योंकि रैपिडली उसकी जो अडॉप्शन है वो बढ़ रही है।
अडॉप्शन इतनी बढ़ी है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज जो है वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, दुनिया के तमाम मुल्कों ने अब उसको लीगलाइज कर दिया है। अब जापान के जो पेंशन फंड है वो अब क्रिप्टो में चला गया है। एल साल्वाडोर ने उसको अपनी ऑफिशियल करेंसी बना दी है। Hmm. एल साल्वाडोर की ऑफिशियल करेंसी बिटकॉइन बन गई है। मतलब आप ये सोचें कि Yes. लोग अपनी करेंसी छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि बस यही सही है हमारे लिए। तो दिस इज एंड व्हाई आर दे अडॉप्टिंग इट, क्योंकि उनको पता है कि इसको कोई बंदा चेंज नहीं कर सकता। किसी एक लीडर के ऊपर नहीं है, ये नहीं है कि एक गंदा लीडर आया, करप्ट लीडर था, उसने मुल्क को तबाह कर दिया। उसको बिटकॉइन को कोई एक लीडर तबाह नहीं कर सकता। एक इंडिविजुअल के पास ताकत ही नहीं है कि वो किसी तरह की कोई एक्शन ले। इट्स जस्ट कंप्यूटर कोड जो कि ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। सो दिस इज एब्सोल्युटली नो वे टू स्टॉप इट। और इंटरनेट अगर बंद ही होगा तभी ये बंद होगी। अब वो इतना फैल चुका है कि इट्स रियली एज परवेसिव एज कैन बी। सॉरी मैं काफी Okay. देर से बोल रहा हूँ, कोई आपको सवाल है मुलीजा? No, no, sir. It's fine. So we have a concept of mining. Can you अच्छा, explain this concept? Yes. सो माइनिंग क्या है? सो जब क्रिप्टो करेंसीज जो है जिस तरह पैसा प्रिंट होता है ना, पैसा ऑफ कोर्स आपने पैसा बनाना है, कोई एक आपका प्रेस मिंट Hmm. मिंट तो होगा ना जो कि पैसा बनाता है, या आपने गोल्ड, अगर आप कहते हैं कि गोल्ड की वैल्यू है तो गोल्ड की माइनिंग होती है ना, तो इसी तरह इसकी माइनिंग होती है। बेसिकली माइनिंग होती है, क्रिप्टो करेंसी काम किस तरह करती है? क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए मजीद टू क्रिएट न्यू कॉइन्स आपको या दो दो तरह के काम करने होते हैं। एक तो नए कॉइन्स आपने बनाने हैं, उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उन्होंने एक सिस्टम को मेंटेन करना है। तो कुछ लोग जो हैं वो सिस्टम को मेंटेन करने के लिए बैठे होते हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना कंप्यूटर दे देते हैं, कहते हैं कि यार मुझे ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा बिटकॉइन का, मैं अपना कंप्यूटर आपको दे रहा हूँ और उसके बदले में मुझे थोड़ा बहुत कुछ रेंट दे देना। और मेरा कंप्यूटर क्या काम करेगा? मेरा कंप्यूटर ये काम करेगा कि मेरा कंप्यूटर, वो जो मैंने आपको बताया ना कि पूरी दुनिया भर के कंप्यूटर्स गवाही Hmm. देते हैं, मेरा कंप्यूटर वो गवाह बन जाएगा जो कि दिन रात बस बैठा ये काम कर रहा होगा, गवाही दे रहा होगा, हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई, ये हुई, ये हुई, ये हुई, ये हुई। वो सारा वक्त अवेलेबल होगा गवाही देने के लिए। और क्रिप्टो करेंसी में जब ट्रांजैक्शन होती है तो जान पूछ के थोड़ा सा मुश्किल, वो करते किस तरह गवाही, वो होता क्या एग्जैक्टली होता है इस तरह कि मैंने अगर आपको मोबाइल दिया तो वो ये तो रिकॉर्ड कर रहा है कि सफ़ी ने इसको दिया, मगर वो रिकॉर्ड किस तरीके से करता है? वो करता है इस तरीके से कि एक every transaction gets validated by a cryptographic puzzle। क्रिप्टो करेंसी उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर क्रिप्टोग्राफिक पजल होता है। एक बड़ा Hmm. डिफिकल्ट सा पजल दिया जाता है और वो कंप्यूटर ही सिर्फ सॉल्व कर सकता है, एंड इट हैज टू सॉल्व इट इन माइक्रो सेकंड्स। अब जो दुनिया भर के कंप्यूटर्स हैं उन्होंने गवाही देनी है कि हाँ हमने देखा था कि ये इसने वाकई में पजल इसको इधर दिया गया था और इसने सॉल्व किया था। दैट शोज कि इसने काम किया। Hmm. इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, यानी कि इट वर्कड टू डू दिस। सो ऑल द कंप्यूटर्स आर विटनेसिंग, एक कंसेंसस मैकेनिज्म बन रहा है, दे आर विटनेसिंग दैट देयर वर्क हैज बीन डन and they are attesting to that work, and there are computers that are doing that actual work। so ये आ गया प्रूफ ऑफ वर्क। और प्रूफ ऑफ वर्क को जब लोग करते हैं, when people do this, जो जो लोग उसको खास तौर पे विटनेस कर रहे होते हैं, तो उनको एज अ रिवॉर्ड कि भाई तुम लोग चलो अपनी एनर्जी जाया कर रहे हो, यू गाइस आर लुकिंग इनटू इट, एज अ रिवॉर्ड ये लो कुछ एक्स्ट्रा बिटकॉइन ले लो। तो वो उस प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग, द क्रिएशन ऑफ न्यू बिटकॉइन दैट एड्स टू द ओवरऑल सप्लाई ऑफ बिटकॉइन। और दूसरा होता है प्रूफ ऑफ स्टेक Yeah. बाय कंपैरिजन। अच्छा, अब प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम ने डेवलप किया। बिटकॉइन था, बिटकॉइन का ये प्रूफ ऑफ वर्क आया। प्रूफ ऑफ वर्क वाज वेरी एक्सपेंसिव। मैं पर्सनली बिटकॉइन के खिलाफ इसी वजह से हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। इट मेक्स नो सेंस कि हर कोई इतनी एनर्जी लगा रहा हो। ग्लोबल एनर्जी सप्लाई अच्छी खासी जो है बिटकॉइन इस्तेमाल कर रहा है। और वन कैन से इट्स अ गुड थिंग, बट मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, मुझे तो पसंद है कि कम से कम एमिशंस हो, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो, तो इसलिए Hmm. मेरे जैसे बंदे के लिए सूटेबल चीज़ नहीं है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक आ गया। प्रूफ ऑफ स्टेक ने कहा कि ये तो अभी अच्छा ओके, प्रूफ ऑफ स्टेक ने कहा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रैंडमली, हम ये नहीं है कि दुनिया भर के कंप्यूटर से कहेंगे कि तुम लोग सारी गवाही दो। हम लोगों से कहेंगे तुम लोग अपने पैसे डालो, स्टेक अपना डालो, पुट इन योर स्टेक एज अ वैलिडेटर। वैलिडेटर बनता है बंदा अगर 32 इथेरियम एक जगह पे वैलिडेटर नोड में लगा दे तो यू बिकम अ वैलिडेटर। दे लाइक यू पुट इन योर स्टेक, अपना इथेरियम सामने रखो, अगर तुमने गलती की तो तुम्हारे में इथेरियम उठा लेंगे। सो पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, पुट योर स्टेक देयर, एंड एट रैंडम दुनिया भर में इस वक्त इथेरियम के भी इस वक्त 55,000 नोड्स हैं। एट रैंडम किसी की भी बारी आ जाएगी और हम कहेंगे हाँ तुम बताओ, इसके बजाय कि सब काम करें, एक बंदे की किसी वक्त भी बारी आ सकती है और वो उसने पैसे भी डाले होंगे अपने ताकि उसने सही जवाब देना है। दैट इज गोइंग टू रिड्यूस द ओवरऑल एनर्जी, यानी कि अब सबने काम नहीं करना है, बंदे ने काम एक बंदे ने करना है और काम उसके साथ अपने उसका अपना फाइनेंशियल इंसेंटिव भी साथ लगा दिया कि तुम्हारी अगर काम गलत किया तुम्हारे पैसे भी गए, मगर
अब क्योंकि एक बंदे ने काम करना है वर्सेस सब ने काम करना है, तो एनर्जी आपकी 99% रिड्यूस हो गई। एंड जब इथीरियम, इसलिए जब प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट हुआ था, तो ग्लोबल एनर्जी की जो कंजम्पशन है वो भी इट फेल बाय 0.5%। इतना तो इस्तेमाल हो रहा था सिर्फ इसकी वजह से। Oh. So, what are some of the common security risks associated with owning and transacting cryptocurrencies? कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, देयर इज नो सिक्योरिटी रिस्क एट ऑल। द रीजन व्हाई पीपल यूज क्रिप्टोकरेंसीज इज एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज नो सिक्योरिटी रिस्क। यही पर्पस है। देखें, सिक्योरिटी रिस्क पाकिस्तानी रुपी का है, रुपी का है कि मेरा रुपी चोरी हो सकता है, मैं लेके फिर रहा हूँ बाहर, एक चोर आ जाएगा मुझसे चोरी करके लेके भाग जाएगा। ये मेरा डॉलर के साथ हो सकता है सिक्योरिटी रिस्क कि अमेरिका जंग पे चला जाए रशिया से और अमेरिका तबाह हो जाए और मेरा डॉलर यूजलेस हो गया, जिस तरह अफगानी हो गया था कुछ अर्सा पहले। मगर हम जो क्रिप्टो करेंसी है, मैंने आपको बात बताई कि सिक्योरिटी रिस्क सिर्फ तभी आता है या तो पूरी दुनिया का इंटरनेट तबाह हो जाए। एक ये सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है कि एक किसी किस्म का सोलर फ्लेयर आए सूरज के अंदर से और वो एक ईएमपी ब्लास्ट आए और पूरी दुनिया में इंटरनेट वाइप आउट कर जाए। दैट इज वन पॉसिबिलिटी ऑफ द एंड ऑफ दीज थिंग्स। दूसरा ये ऑफ कोर्स हो सकता है सिक्योरिटी रिस्क की अगर हम बात करें तो इफ यू लूज, मतलब आप इन द सेंस के अब तो खैर काफी देयर आर मेनी वेज टू गेट योर अकाउंट बैक, मगर पीपल हैव लॉस्ट देयर अकाउंट्स एज वेल। ये भी एक बात होती है, क्योंकि लोग जब सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स में आते हैं, सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स का भी कॉन्सेप्ट है, तो उस सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स के अंदर कभी कभार समटाइम्स पीपल वो ट्रांसफर कर देते हैं इनटू हार्डवेयर वॉलेट्स, तो वो कभी कभार घुमा देते हैं। उसके लिए फिर वो ढूंढते रहते हैं कि किधर है, कहाँ गया। एंड उसका एक एडवांटेज होता है हार्डवेयर वॉलेट्स का, जो सिक्योरिटी रिस्क ऐसा नहीं है। मैं मगर दूसरी तरफ की मैं बात करता हूँ कि हैक्स वगैरह जो होते हैं वो होते किस तरह हैं। सुना होगा वो हैक्स तो हुए हैं, तो ये हैक किस तरह हो रहे हैं। अगर मैं एक तरफ ये बात करूं कि हैकिंग हो नहीं सकती, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि हैक भी हुए हैं। ये होते हैं ब्रिजेस में। होता है इस तरह कि व्हेन यू आर शिफ्टिंग वन क्रिप्टो करेंसी टू अनदर क्रिप्टो करेंसी, तो एक कॉन्सेप्ट होता है ब्रिज का, दैट इज डन थ्रू द नॉर्मल इंटरनेट। अब एक मैंने क्या बताया था, एक ब्लॉकचेन आपने बना दी, वो आपकी ब्लॉकचेन है लेट्स से इथेरियम की। दूसरी तरफ मैंने एक ब्लॉकचेन पूरी बना दी, वो है सोलाना की। एक दिन मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार मैं इथेरियम के बजाय सोलाना क्यों ना ले लूं, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट व्हेन कन्वर्टिंग आई विल गो डाउन इनटू द नॉर्मल इंटरनेट। अब मैं ब्लॉकचेन से निकल रहा हूं और मैं इंटरनेट पे जा रहा हूं बिफोर आई गो बैक अप टू द इंटरनेट। वो जो ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट है ना, बिफोर आई गो, दैट इज वेयर द हैकर्स आर सिटिंग। उनको पता है कि ये कुछ लोग हैं जो कि ये कर रहे होते हैं, दैट इज वेयर द अटैक। सो 100% ऑफ द अटैक्स टेक प्लेस ऑन दैट ब्रिजिंग टाइम। मगर this would never happen अगर आप सिर्फ लेट्स से इथेरियम में बैठे हो। there is no recorded instance of a single attack on the Bitcoin blockchain, Ethereum blockchain, Solana blockchain। मतलब ब्लॉकचेन के ऊपर अटैक नहीं होता कभी भी। जो ट्रांसफर टाइम होता है, ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है, उधर कभी कभार अटैक्स होते हैं, और वो सक्सेसफुल अटैक्स बहुत सारे हुए हैं। Okay, it is the new thing. We associated many scams and security अच्छा risks स्कैम्स with तो the cryptocurrency. यस और नहीं नहीं, अच्छा स्कैम्स तो अनलिमिटेड है ना, वो तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखें, स्कैम्स तो बहुत जबरदस्त किस्म के हुए हैं। स्कैम्स इज डिफरेंट, हैक्स आर डिफरेंट। सो हैकिंग तो मैंने आपको बता दी कि ब्रिजेस में हो रहा है। स्कैम्स तो देखिए, स्कैम तो बड़ी मजे की चीज है ना। आज मैं आपको कहूं कि मैंने लेट्स से मैं हम एसोसिएट करते हैं बैंक्स को एज सेफ्टी ऑफ मनी, राइट। मैं कहूं कि मैंने सफी बैंक खोल दिया, मैं बड़ा जबरदस्त सा लोगो बना दूं, बिल्डिंग बना दूं, लोगों को बड़ी जबरदस्त किस्म की मैं कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स बैठा दूं, अच्छे से बैजेस वगैरह बनाकर लोगों से कहूं कि तुम लोग पैसे डिपॉजिट करना शुरू कर दो। पैसे लोग डिपॉजिट करना शुरू कर दे, मैं लोगों के पैसे लेके भाग जाऊं। क्या मैं ये कहूंगा कि बैंकिंग स्कैम, बैंक्स फेल हो गए सारे के सारे? नहीं। मैं स्कैमर था। मैंने लोगों को कहा कि मैंने एक बैंकिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये मेहरान बैंक का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में हुआ है। ये इस तरह के मेनी मेनी प्रोजेक्ट्स वी हैव सीन। अभी रिसेंटली मरी रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा बैंक इसी तरीके से पकड़ा गया है, जो कि बिल्कुल फेक बैंक था, बिल्कुल फेक था, मतलब कुछ भी नहीं था। इसी तरीके से अब ये किसकी गलती है? क्या ये बैंकिंग निजाम की गलती है? नहीं, ये तो एक बंदा था झूठ झूठ बोल रहा था कि मैं बैंक हूँ, जबकि वो बैंक नहीं था। इस तरह बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हमने की है, हमारी ब्लॉकचेन है। ये बहुत कॉमन है कि लोग झूठ बोलते हैं, उस झूठ बोल के लोगों के पैसे ले लेते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो जैसे क्योंकि नई चीज है, लोगों को ज्यादा पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन है नहीं। कल ही मुझे एक बंदा मिला, वो मुझे बता रहा था किसी एक स्कैम के बारे में, और आई वाज लाइक यार भाई क्या कर रहे हो किधर बैठे हुए हो, किस जगह पे तो अपने पैसे डाले जा रहे हो। ये रोज की बात है क्रिप्टो करेंसी में कि पीपल फूल यू एंड पीपल टेल यू कि दे हैव क्रिप्टो करेंसी चेन। पाकिस्तान के अंदर वकार जका ने इस तरह किया था। वकार जका ने एक अपनी चेन बनाई थी। मैंने आपको बताया ना, वैलिडेटेड नोड से कॉन्सेप्ट बताया था थोड़ी देर पहले, ब्लॉकचेन।
तो वो उसमें वैलिडेटर नोड कौन था? वकार जका का, वो खुद और उसकी बीवी, 2 लोग थे। वो बैठ के वैलिडेटर नोड्स 2 ही बना के बैठे हुए थे, लोगों से पैसे ले रहे थे, कह रहे थे ये हमारी ब्लॉकचेन है। तो ऑफ कोर्स नाउ दिस इज अ स्कैम, दिस इज नॉट अ रियल डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम जिसमें इंडिपेंडेंट नोड्स होते हैं। हमने क्या करना है, हमने तो एक इंडिपेंडेंट सिस्टम बनाना है। तो अनफॉर्चुनेटली स्कैम्स आर वेरी वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन, देर ऑल ओवर द प्लेस। और इन स्कैम्स की वजह से क्रिप्टो करेंसी डज गेट अ बैड नेम ओवरऑल, बट देर इज नथिंग दैट कैन बी डन अबाउट इट, क्योंकि पीपल, जो लोग जिन्होंने झूठ बोलना है, जिन्होंने स्कैम करना है, वो तो करेंगे। नौसरबाज तो हर जगह है। Okay. Now we are coming to the legal landscape of the Pakistan. What is the current legal status of cryptocurrencies in Pakistan? Is it authorized or banned or illegal? नहीं, नाइदर इज इट बैंड नॉट इज ऑथराइज्ड। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कुछ भी इसके ऊपर, पाकिस्तान हैज डन नथिंग। पाकिस्तान में जो लॉ है, जनरल क्लॉजेस एक्ट में, वो ये कहते हैं कि समथिंग इज लीगल अनलेस इट इज क्लियरली प्रोहिबिटेड। सो क्लियर प्रोहिबिशन कहीं नहीं आई है। ये बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि ना तो स्टेट बैंक ने कहा, ना एससीसीपी ने कहा, किसी ने नहीं कहा। मगर दूसरी तरफ किसी ने ये भी नहीं कहा कि अलाउड है। पाकिस्तान रिकग्नाइज ही नहीं करता ना। तो अब अगर मैं जाऊं और मैं कहूं कि मैंने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बनाना है और मैं जाके कंपनी बनाने की कोशिश करूं, तो मुझे एससीसीपी कहेगा ये तो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो मैं आपको बनाऊंगा ही नहीं। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि चीज ही है ये। तो जब वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर हम काम क्या करेंगे? तो वो इस वजह से पाकिस्तान में जो लीगल लैंडस्केप है, इट्स सफरिंग टेरिबली। यहाँ पे काम करना तकरीबन इम्पॉसिबल है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट उसको, एफबीआर उसको रिकग्नाइज नहीं करता एज अ टैक्सेबल एंटिटी। उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं, मतलब जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती लीगल लॉ में, वो उसको आप किस तरीके से करेंगे रेगुलेट? Yes. And how is it viewed from the Islamic perspective? बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। सो मेरी लॉ फर्म ने फतवे निकलवाए हैं, हमने खुद उनके ऊपर काम किया। मेरी फर्म के अंदर एक आलिम है जिनको मैंने एंगेज किया हुआ है, मतलब दे वर्क इन माय लॉ फर्म स्क्वायर लीगल। उनका नाम है ज़कवान हज़ारवी। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ही हैज़ बीन वर्किंग विद उलेमा, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इन सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, इंडिया। रेगुलर हम काम कर रहे हैं। हमारे पैनल में हमारे साथ हैं तकरीबन लगभग 55 उलेमा, और उनके साथ हमने मुख्तलिफ फतवे निकलवाए हैं। सो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि, और फतवे जो हमारे पास पड़े हुए हैं देखने के लिए, पहली बात तो ये कि क्रिप्टो करेंसी डिपेंड करता है कि किस किस्म की है। सो आई एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मुफ्ती फराज आदम है, वो उन्होंने बड़ा क्लियरली बात बताई हुई है कि क्रिप्टो करेंसी है हलाल। डिपेंड करता है कौन सी क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है। हर चीज़ के ऊपर ना थोड़ा सा नुआंस होता है ना। ऐसे तो नहीं होता कि आप उसको ब्लैंकेट कर दो कि ये चीज़ हलाल है, हराम है। बैंक्स भी हलाल हैं, मगर अगर रिबा में चले जाएं, कुछ गलत काम कर रहे हो, तो फिर एक्टिविटीज़ हराम होती हैं। चीज़, कॉन्सेप्ट, टेक्नोलॉजी तो हराम नहीं हो सकती, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हराम हो सकता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी वेरी गुड टेक्नोलॉजी। इस्लाम मेरे ख्याल में एक प्रोग्रेसिव मज़हब है। इस्लाम कभी भी टेक्नोलॉजी से खिलाफ नहीं होगा, मगर उनके गलत इस्तेमाल के खिलाफ होगा। और आई थिंक दैट्स व्हाट वुड अप्लाई फॉर क्रिप्टो करेंसीज एज़ वेल। Okay. Now we are coming to international laws, and how do international laws and regulations affect cross-border cryptocurrencies transaction involving Pakistan? अच्छा, देखिए वही बात है ना, पाकिस्तान का तो मैं, लेट्स गेट बैक Yes. टू इशू दैट पाकिस्तान डज नॉट रिकॉग्नाइज इट। पाकिस्तान को अभी आईएमएफ ने इस वक्त पुश किया हुआ है, पाकिस्तान हैज टू डू समथिंग नाउ। एक वर्किंग ग्रुप भी बना हुआ है, काम हो रहा है उसके अंदर, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। सो वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ लॉ, कोशिश हो रही है। बट पाकिस्तान में आपको पता ही है क्या मसाइल होते हैं, द वे थिंग्स हैपन आर वेरी स्लो। यहाँ पे किसी का इंटरेस्ट ही नहीं होता, और अभी भी इंटरेस्ट नहीं है। गवर्नमेंट चेंज हो रही है, सो देयर इज अ बिट ऑफ अ वे टू गो। मगर इंटरनेशनली बहुत अच्छा सिचुएशन है। आप ये देखें कि, जो मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल एंड मेक यू अंडरस्टैंड हाउ वैल्यूएबल ऑल ऑफ दिस इज। यूरोप ने रेगुलेट कर दिया, माइका रेगुलेशंस है, मार्केट क्रिप्टो एसेट्स। वो पूरे यूरोप में इस वक्त लीगल है, रेगुलेटेड है, जबरदस्त जा रहा है। चाइना में जो शी जिनपिंग है, उसने 20th नेशनल पार्टी कांग्रेस में कहा है कि अब से जो भी मिनिस्टर बनेगा चाइना में, जो भी पावर में आएगा, दे मस्ट हैव नॉलेज ऑफ ब्लॉकचेन, वरना हम उसको पावर में नहीं आने देंगे। मिनिस्टर ही नहीं बन सकता कोई बंदा। स्टैंडिंग पोलिट ब्यूरो उनकी, दैट इज वेयर इट स्टैंड्स। जापान रेगुलेटेड, दुबई आपने देखा $600 बिलियन वो कमा चुके हैं, रेगुलेटेड है। अबू धाबी, सिंगापुर रेगुलेटेड। मतलब इफ आई लुक अराउंड, पूरे तकरीबन मिडिल ईस्ट इस वक्त रेगुलेटेड है। इंडिया में रेगुलेटेड है, 30% टैक्स है। ऑस्ट्रेलिया में रेगुलेटेड है।
सो पाकिस्तान उन चंद ममालिक में रह गया जो कि पीछे रह गया, अभी तक नहीं काम कर सका, बट ऑलमोस्ट एवरीवन हैज डन वन थिंग और द अदर। और लोगों ने एक्टिवली अब क्रिप्टो करेंसी को बनाना शुरू कर दिया एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एसेट्स, यानी उसके रिजर्व्स रख रहे हैं। और भूटान उसमें बड़ा क्लियर है, भूटान का पता लगा पिछले दिनों छुपे छुपे अपने पास जमा करता जा रहा था, एक अपना रिजर्व्स बढ़ा रहा था। रशिया के पास बहुत बड़े रिजर्व्स हैं, तो अब नॉन रिजर्व्स भी कंट्रीज आना शुरू हो गए हैं। ये हमें पता लग रहा है कि लोगों ने ना सिर्फ लीगलाइज किया है बल्कि उसको अपने पास जमा भी करना शुरू कर दिया है, जस्ट लाइक गोल्ड, जस्ट लाइक एनी एसेट। ओके, अगर कोई फ्रॉड फेस करता है तो वो फिर पाकिस्तान में उसकी लीगल रेमेडीज क्लेम कर सकता है? नहीं, मतलब फ्रॉड, वही मैं आपको मतलब फिर वही बात कहूंगा ना कि हाँ, वो फ्रॉड किस फ्रॉड तरह का fraud? थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि क्या फ्रॉड जो आप बात कर रही है ना, मैं यही तो आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में स्कैम्स और फ्रॉड्स हैं, मगर वो क्रिप्टो करेंसी के नहीं है। मसला ये है सारा यस कि यस वो, मीन हाँ, अब मैं आपको एग्जांपल देता इंडिविजुअल्स। हूँ। हाँ, इंडिविजुअल्स के सबसे मैं आपको जबरदस्त एग्जांपल देता हूँ, द बेस्ट एग्जांपल दैट आई लव गिविंग पीपल। जो सबसे बड़ा स्कैंडल है ना पूरी पूरी क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के अंदर, वो है FTX डिजास्टर। FTX एक बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था यूएस के अंदर। वो इतना बड़ा था कि अमेरिका का सबसे बड़ा इवेंट होता है सुपर बोल, जिस लाइक हमारा PSL होता है ना, उस तरह एक सुपर बोल होता है उनका। वो सुपर बोल उसने होस्ट किया था। मतलब आप इस तरह सोच लो कि मतलब जो PSL का इधर होस्ट होगा मेन, या IPL का इंडिया में जो होस्ट होगा, वो उसका होस्ट FTX था। इतना बड़ा उसने काम किया। FTX एकदम पता लगा कि FTX झूठ बोल रहे हैं और FTX क्रिप्टो करेंसी का स्कैम है। और FTX का जब पता लगा तो पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी क्रैश कर गई कि FTX का झूठ बोल रहा है, तो फिर तो कोई भी झूठ बोल सकता है। पता किस तरह लगा कि FTX झूठ बोल रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, पता किस तरह लगा कि FTX झूठ बोल रहा है? हुआ क्या? हुआ ये कि कुछ लोग थे, कंप्यूटर नर्ड्स बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जरा ये FTX कहता रहता है कि मैं क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहा हूँ, जरा चेक करते हैं काम कर भी रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर कि नहीं कर रहा। तो वो ब्लॉकचेन के ऊपर चले गए। मेरे को पता है ब्लॉकचेन तो कोई भी देख सकता है जाके, इट्स ट्रांसपेरेंट। उन्होंने जाके देखा कि ट्रांजैक्शंस ही नहीं है उधर। तो उन्होंने कहा कि इधर तो FTX क्लेम कर रहा है कि अपने इन्वेस्टर्स को बता रहे कि हमने इतनी ट्रांजैक्शंस कर दी, 5 बिलियन ही कर दी, मगर वो तो ट्रांजैक्शंस असल में कर ही नहीं रहे, तो ब्लॉकचेन के ऊपर तो है ही नहीं। तो पता लगा कि वो तो खुद ही बैठा अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठा ट्रांजैक्शंस अपने, उन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ था, तकरीबन 800 कंप्यूटर रखे हुए थे, वही कर रहे थे। तो जब ये बात लोगों को पता लगी कि यार तुम लोगों ने तो कभी ब्लॉकचेन पे काम किया ही नहीं, तो दैट बिकेम द बिगेस्ट स्कैंडल। तो हमें पता कैसे लगा कि अब लोग कहते हैं कि वो जी ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा स्कैंडल है। ब्लॉकचेन से तो पता लगा कि वो स्कैंडल क्या है। ब्लॉकचेन के ऊपर गए तो देखा कि नहीं है। मतलब इट इज वी डिस्कवर्ड द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन, अदरवाइज वी वुड हैव नेवर नोन कि एक बंदा किस तरह झूठ बोल रहा है। सो दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट कि ये दिस इज सच अ गुड टेक्नोलॉजी कि इस टेक्नोलॉजी से के साथ कोई बंदा करप्शन कर ही नहीं सकता। वो एंड दैट्स व्हाट द होल आइडिया ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज। एक सवाल आ रहा था इधर, एक सेकंड, थोड़ी देर पहले मैंने एक देखा था एक कमेंट्स में किसी जगह पे। अब ये सवालों पे आज हैं बहुत सारे, मैं देख रहा हूँ कि एक सवाल बहुत सारे आए हुए हैं, या Yes, आप पूछेंगे? sir, no, you can go to question and answer मैंने session. जल्दी नोटिस किया कि ये हाँ जी। Yes. अच्छा, Okay, अ, anytime. पहले से शुरू करूं मैं? ये Yes, अमर sir, sure. इब्न मुनीर साहब पूछ रही हैं, डियर सर, हाउ सिक्योर डू यू बिलीव क्रिप्टो करेंसीज, हाउ सिक्योर इज इट कंपेयर्ड टू इट्स अदर काउंटरपार्ट्स? मैंने सोची आपको बता दिया अभी कि इट्स Yes. इट इज नो इंस्टेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी इटसेल्फ। मतलब डिपेंड करता है कौन सी क्रिप्टो करेंसी ना, वही मसला है कि अगर आप कोई फेक 2 नंबर चीज उठा लें फिर कहें कि वो अनसिक्योर निकली, तो एक अलग बात है। बट द नोन वंस आर परफेक्टली, मतलब बिटकॉइन, इथेरियम में कोई देयर इज जीरो, अभी तक है ही नहीं कोई, नो नोन इंस्टेंस ऑफ देम बीइंग द ब्लॉकचेन इटसेल्फ बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। ब्लॉकचेन से बाहर जो है चीजें बहुत सारी खराब हो सकती हैं, मगर ब्लॉकचेन के अंदर अभी तक कोई नोन केस नहीं है। तो इस वजह से मेरा तो ख्याल में 100% सिक्योर है। Hmm. दूसरा क्वेश्चन है, सर एज यू हैव सेड दैट सर्टेन कंट्रीज आर अडॉप्टिंग क्रिप्टोकरेंसी, कैन इट बी अडॉप्टेड फॉर डेली यूज, कैन इट बी यूज्ड टू बाय डेली नेसेसिटीज, और कैन इट ओनली बी यूज्ड फॉर सर्टेन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस? वंडरफुल क्वेश्चन अमर। यस, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर डेली ट्रांजैक्शंस इन लेबनान। लेबनान में आपने दूध दही लेने जाना है, क्रिप्टो करेंसी में आप लेंगे। एल साल्वाडोर में आपने जाके किले लेने, Both. आप क्रिप्टो करेंसी लेंगे। ये इस वक्त डेली ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कोस्टा रिका में इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। और मैं खुद क्योंकि बड़ा एक्टिवली इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं तो अब तो वैसे आपको पता भी नहीं लगेगा। अब नहीं, आप मिसाल के तौर के ऊपर मैंने खुद अभी पर्सनली एक कंपनी के साथ डेवलप किया, हमने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है, तो क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा
वो मास्टर कार्ड का कार्ड होगा, जिधर भी आप कार्ड इस्तेमाल करते हैं वो मगर पीछे से क्रिप्टो करेंसी से कनेक्टेड होगा आपके वॉलेट के साथ, तो वो इस्तेमाल कर रहा होगा, आपको फर्क भी पता नहीं लगेगा। अच्छा जी, फिर मैक मार कह रही है व्हाट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेल डन माशाल्लाह वलीजा, यस माशाल्लाह यू आर डूइंग सच अ गुड जॉब वलीजा, थैंक यू। Thank you, sir. Sir, how do Islamic finance principles intersect with the use of cryptocurrency, and are there any specific considerations for relating to Sharia law? मैं इसके ऊपर बिल्कुल देर आर लॉट ऑफ कंसिडरेशंस। इसके ऊपर हमने ना, मैंने आपको बताया कुछ फतवे भी लिए हैं और कुछ हमारे पास पेपर्स पड़े हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ डिटेल में। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं कंप्लीट डिटेल्स में जाऊँ और आपको Yes, sir. सारे बताऊँ कि क्या क्या एग्जैक्ट इश्यूज हैं जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के हम इस्तेमाल कर रहे हैं। But I have those papers with me and I'm happy to share with you. So, Sir, please share with us because we are Sharia law students. मैं आपके साथ बिल्कुल 100% मैं आपके साथ अच्छा, आप सारे शरिया लॉ के स्टूडेंट्स हैं? Not all, but most of us. ओके ग्रेट, नहीं जी ज़रूर, आई एम 100% गोइंग टू शेयर देम विद यू। हमारे पास और ये हमारे पास जो फतवे हैं ये दे हैव बीन काउंटर साइंड बाय मुफ्तीज फ्रॉम इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, मतलब दुनिया भर के उलमा ने उनको काउंटर साइन किया है। तो इसलिए और दिस इज व्हाई वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, लाइक हमें लगता है कि बड़ा सक्सेस है कि हम ये काम कर रहे हैं। हमने फतवे लिए हैं क्रिप्टो करेंसी स्टेकिंग के ऊपर, एनएफटीज के ऊपर, तो इट्स ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं ये तमाम की तमाम चीज़ें, हमने फतवे जो सारे हैं ना, मैं वैसे ही ज़बरदस्ती रख के बैठा हूँ अपने पास, बट आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग देम ऑन माय सोशल मीडिया एज वेल सून इनफ। मैं सोच रहा हूँ लिंक्डइन पे और इन बाकी अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी मैं जस्ट पब्लिक के लिए मैं डाल दूँ ताकि हर कोई देख सके। और बड़ी मजे की बात बताता हूँ आपको कि हमारा जो एनएफटीज के ऊपर एक है नॉन फंजिबल टोकन्स का फतवा, वो मैंने खुद उसको मिंट करवा दिया एज एन एनएफटी। So now I have the fatwa on NFTs as an NFT, which was just a fun thing to do. ये हमने वैसे एक शुगर लगाया था थोड़ा सा। अच्छा जी, Okay. can you share any notable success stories or case studies from your experience advising clients in tech and crypto sector? अच्छा, मज़े के जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैं आपको कुछ मज़े के प्रोजेक्ट्स मैं आपको बता सकता हूँ जो कि हमने किए हैं और हम कर रहे हैं। एक तो जो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं बड़ा इस वक़्त एक्साइटेड हूँ, वो एक हम नया मेटावर्स लॉन्च कर रहे हैं। मेटावर्स का सारा कॉन्सेप्ट वेब 3 का ही कॉन्सेप्ट है ना। मेटावर्स एक ऑनलाइन 3D एरिया होता है हमारा, उसके अंदर हम अपना जो ऑफ़िस है वो भी हम मेटावर्स के ऊपर डाल रहे हैं और आजकल वो बन ही रहा है। सो दैट्स गोइंग टू बी समथिंग, जब आपने बात करनी होगी, मिलना होगा, तो आप कभी भी हमारे मेटावर्स ऑफ़िस में भी आके हमसे मिल सकते हैं। उसके अलावा टोकनाइजेशन ऑफ टेस्ला टेस्ला का प्रोजेक्ट था जो कि दुबई में हमने किया था, बड़ा मजे का था कि टेस्ला के टोकन्स, और इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्यूल्स आप टोकन्स के साथ डायरेक्टली पे कर सकें, तो टेस्ला की हमने टोकनाइजेशन की। अच्छा, मजे का ये आइडिया ये कि बिकॉज ऑफ दिस यू कैन टोकनाइज एनीथिंग ना, आप किसी भी चीज को आप डाल सकते हो ब्लॉकचेन के ऊपर, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। तो टेस्ला ने अपनी गाड़ियां डाल दी अभी। हाँ, चंद दिन पहले मैंने एक और चीज की, एक लग्जरी वॉचेस का ब्रांड है, उसका नाम है फ्रैंक मुलर और लैम्बोर्गिनी, दो ये ब्रांड्स हैं। इनके हमने जो टोकन्स वगैरह और ब्लॉकचेन है वो हमने सारे सारे टोकनाइज ब्लॉकचेन करके एक नई चेन है M20 चेन, उसके ऊपर डाल दिए। So it's a lot of fun. मतलब we are seeing all the big brands come into it, even Gucci, Louis Vuitton, सारे के सारे आते जा रहे हैं, and it's really become very very big. एक और जो केस स्टडी है ना जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। माविश, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि द बिगेस्ट केस स्टडी इज एक्चुअली फॉर फ्रीलांसर्स। आप पाकिस्तान में फ्रीलांसर हो, आप काम कर रही हो बाहर अमेरिकन क्लाइंट के लिए, आप उधर उसको नेट से कहो कि मुझे आपने भेजने हैं $500, वो $500 अगर उसने आपको भेजने हो, आप जलील हो जाओगे दरमियान में। इतना मसला है, 10 दिन बाद वो पैसे आएंगे दरमियान में। इवन इफ यू यूजिंग थिंग्स लाइक पेयोनियर, स्टिल अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कम। दरमियान में मल्टीपल वेरिफिकेशंस, डॉक्यूमेंटेशंस, वो चेक करना कि पाकिस्तान है, दहशतगर्द तो नहीं है वो, क्योंकि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं, वहाँ ये भी इश्यूज हैं कि दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज हैं। जिस बंदे ने आपको भेजने हैं उसको अलग रिपोर्टिंग करनी होगी, वो कहेगा यार मैं पाकिस्तान से नहीं लेता, जाए पाकिस्तान में फिलीपीन से ले लेता हूँ किसी बंदे को। बट क्रिप्टो करेंसी में आपने पैसे मांगे 500, अगले 2 सेकंड में आपके अकाउंट में, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। दैट इज सच अ बिग यूज केस। आप खुद सोचो कि फॉर फ्रीलांसर इकोनॉमी कितना बड़ा यूज केस है। सो मैं जब अपनी सर्विसेज बाहर देता हूँ, यू कैन इजीली गेट मनी इन क्रिप्टो करेंसी एंड दैट्स ओके। अच्छा सॉरी, ये है कि अमर का एक और क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ड्यू डिलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर वन टू अंडरटेक बिफोर जॉइनिंग द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो? आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, सॉरी। मुझे अगर क्लियर नहीं है कि ड्यू डिलिजेंस वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो का, आई डोंट, ये अगर फिर से आप किसी तरीके से रिवर्ट करके भेजो तो मैं इसको आंसर कर देता हूँ।
अच्छा, मैं व्हाट डू यू थिंक इज द मेजर कॉज बिहाइंड द लैक ऑफ लेजिस्लेशन ऑन क्रिप्टो? मेजर रीजन पावर स्ट्रगल है महक। इधर हमारे जो इदारे हैं वो इस वक्त लड़ाई कर रहे हैं। स्टेट बैंक कहता है मुझे चाहिए, एससीसीपी कहता है मुझे चाहिए, एफआईए कहता है मुझे चाहिए, हर किसी को चाहिए। तो ये इनकी एग्रीमेंट ही नहीं हो रही। पहले ये बैठ के डिसाइड करें कि क्योंकि बहुत लुक्रेटिव है ना, करप्शन वगैरह भी इसमें बहुत हो सकती है, लाइसेंसेस वगैरह बिकेंगे अरबों के, जिस तरह टेलको में हुआ था। मतलब ये हमारे मुल्क में ये यही मसाइल है। ये इसको इधर ही रहने देते हैं। अच्छा जी, हसन रजा, व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न ब्लॉकचेन एंड वेब3? हसन, आई थिंक द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग इज जस्ट टू स्टार्ट रीडिंग अप ऑन इट। आप मतलब फॉलो योर इंटरेस्ट। आपको जो चीज़ ब्लॉकचेन के बारे में आप वैसे यूट्यूब पे जाओ, लिख दो ब्लॉकचेन एक्सप्लेनर वीडियो, आप वीडियो देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा ब्लॉकचेन क्या है। वेब3 के बारे में कुछ देखोगे, कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने अभी ये बातें की, कुछ समझ में आ जाएगा। वो चीज़ें, उसमें से जो चीज़ इंटरेस्ट किया वो नोट करो, उसको आगे सर्च करो, एंड देन लेट योर क्यूरियोसिटी जस्ट टेक यू फॉरवर्ड। क्यूरियोसिटी आपको कहीं ना कहीं लेती चली जाएगी। मतलब दैट्स हाउ आई आल्सो लर्न ब्लॉकचेन, टू बी ऑनेस्ट। मैं क्यूरियस था, मैं देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते इंसान जो है बहुत आगे चला जाता है। अच्छा जी, Yes. महक की हाउ डू लेमन गेट इन्वॉल्व इन क्रिप्टो एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू गेट इनटू क्रिप्टो? अच्छा, ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं क्यों समझता हूँ कि हर किसी को लेना चाहिए। आज से 10 साल पहले बिटकॉइन की वैल्यू थी तकरीबन $800। आज है $70,000। यानी कि आप अगर 10 साल पहले इसमें चले गए होते और आपने एक बिटकॉइन भी ले लिया होता, तो आज आपकी वैल्यू 70,000 यानी कि करोड़ से ऊपर होती, 2 करोड़ के करीब होती। ठीक है ना, 2 करोड़ का एक बिटकॉइन इस वक्त हो गया। और उससे भी पहले, 800 से भी पहले एक टाइम था कि मैंने खुद पर्सनली 5 पाउंड का भी एक दफा लिया था। पाँच, यूके में मैं काम कर रहा था, 5 पाउंड का ले लिया, और उसी वक्त मैंने गेम के ऊपर उड़ा दिया। तो मुझे बड़ा दुख होता है आज तक कि मैंने उस गेम पे क्यों उड़ा दिया। अगर मैं ना उड़ाता, 2 बिटकॉइन लिए थे इनफैक्ट, तो इसका मतलब है कि मेरे पास 7-4 करोड़ रुपए होते, कितना मैं खुश होता। तो एग्जैक्टली दिस इज द रीजन व्हाई यू वांट टू गेट इनटू इट, बिकॉज इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। और ये मैं कह रही है कि पहले मिल जाते तो हम मिल होते। हाँ। तो ये इश्यू ये है कि देखें, ये इसकी वैल्यू राइज कर रही है, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू गेट इनटू इट सो दैट यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस न्यू इकोनॉमी। इसमें इस वक्त जो लोग डेवलपर्स हैं, सोलिडिटी डेवलपर्स, जो ब्लॉकचेन डेवलपर्स हैं, दे आर द हाईएस्ट पेड डेवलपर्स इन द वर्ल्ड। एक एवरेज डेवलपर की तनख्वाह इस वक्त साल की $200,000, $2 लाख। यानी कि $2 लाख कितने बने पाकिस्तानी, मुझे इसमें बताना पड़ेगा। यानी आप लोग देखे होंगे ना, आपके आसपास भी होंगे लोग कहते होंगे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, 1000 आपके जानने वाले भी लोग होंगे। पाकिस्तान में बेचारे रुल रहे हैं, लाख लाख रुपए उनकी सैलरी है। तो ये सैलरी बनती है साल की 5 करोड़। ये वजह है कि अगर आप इसको सीख लो, तो इस वक्त एवरेज गोइंग सैलरी ये चल रही है, बिकॉज डिमांड बहुत हाई है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, अमर कह रहे हैं as in what are important things to learn about before joining crypto? That is, what are the most important elements one needs to know before joining crypto? हाँ, so crypto को understand करना, ये बात I think what's most important, जो कि मैंने आपको सबसे पहली बात बताई है कि नंबर 1, बहुत ज़्यादा स्कैम्स है मार्केट के अंदर। ठीक है ना, सो यू शुड नो कि स्कैम्स क्या है। यू शुड देन अंडरस्टैंड कि आपने स्कैम्स में नहीं जाना। मेरे ख्याल में बिफोर जॉइनिंग क्रिप्टो, गुड नॉलेज ऑफ हाउ फाइनेंस एंड इकोनॉमी वर्क्स इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड आइडिया। वरना आप कंफ्यूज ही रहोगे कि हो क्या रहा है, आज प्राइस ऊपर क्यों जा रही है, आज प्राइस नीचे क्यों जा रही है, ये हो क्यों रहा है। प्राइसेस ऊपर नीचे क्यों जाती हैं क्रिप्टो में? प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं वर्ल्ड इवेंट्स के साथ। रशिया ने यूक्रेन में जंग कर दी, क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ गई। क्यों बढ़ गई भाई? ये क्या वजह थी? इसलिए क्योंकि अब एकदम यूक्रेन को ब्लॉक कर दिया गया। यूक्रेन में पैसे अब लोग क्रिप्टो से भिजवा रहे थे। $100 बिलियन यूक्रेन को डोनेशंस गई हैं थ्रू क्रिप्टो, क्योंकि रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, तो लोगों को डायरेक्टली मोबाइल के ऊपर क्रिप्टो लोगों ने भेजना शुरू कर दिया। ये होते हैं पाकिस्तान में। अब मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ, बड़ी एक आई वांट टू गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल दैट आई ऑलवेज गिव पीपल। पाकिस्तान में सैलाब आए, इमरान खान ने एक बहुत बड़ा वो फ्लड मैराथन करवाया, आपको याद होगा। फ्लड मैराथन में मुझे नहीं याद कि क्या उसने बताया था, कितना पैसे उसने इकट्ठे किया, मगर कुछ बात इसी तरह की थी, कोई शायद 10 अरब या कोई मतलब बहुत बड़ी अमाउंट। अच्छा, कभी कोई पूछे कि अमाउंट आई कितनी पाकिस्तान के अंदर? उन 10 अरब जो रेज किए, वो तो आपको तो नहीं नजर आया ना कि 10 अरब रुपए लगे वैसे सैलाब के उसके लिए। वो अमाउंट कितनी आई है? वो अमाउंट आई शायद कोई 3 करोड़।
वो क्यों अमाउंट इतनी कम आई? एक तो कुछ लोगों ने खैर भिजवाई नहीं, झूठ बोला, उन्होंने कहा कि हम भेज रहे हैं मगर भेजा नहीं। वो आधे तो तकरीबन इस तरह थे, मगर बहुत सारे लोगों ने भेजने की कोशिश की और बैंक्स में फंस गए। बैंकिंग चैनल्स, ये मसाइल, वो मसाइल, पेपर वर्क, उन्होंने एवेंचुअली वापस कर दिया। पाकिस्तान जा रहा है भाई, दहशतगर्द मुल्क है, यहाँ पे लोग नहीं चीजें भिजवाते। अब इसी के ऑपोजिट यूक्रेन में जंग हुई, क्रिप्टो में पैसे जाना शुरू हो गए, उनके पास सारे पैसे मिल गए। So, I think one of the best things to do is, in fact, to just get money into Pakistan for even donations, and I think that would be great. हाँ जी, महक, बहुत ज़्यादा स्कोप है क्रिप्टो लॉयर्स का। मैं खुद क्रिप्टो लॉयर हूँ। मैं इस वक्त 5 कंपनीज का हेड ऑफ लीगल हूँ और ये सारी कंपनीज पाकिस्तान से बाहर हैं। तो हमारी लॉ फर्म करती है, यहाँ हम बेसिकली लीगल सर्विसेज आउटसोर्स करते हैं। हम कंपनीज को ले लेते हैं, कंपनीज को हम कहते हैं कि उनको मिलते नहीं है बाहर लॉयर्स, तो वो पाकिस्तान से उनको मुझे हायर करना पड़ता है। और मैं फिर देन वी कैन आल्सो रन द लॉ फर्म लाइक दिस। इट्स अ गुड आइडिया, एंड थैंक यू अमर। Okay. Yeah. Sir, where we can meet you? वो उनीब को पता है। उनीब knows where I am, तो मैं इधर F8 में ही होता हूँ, करीब ही हूँ। Okay, sir. ठीक है, Can we come? हाँ जी, ऑफ कोर्स, यू आर मोस्ट वेलकम। Thank you, sir. Thank you. Okay. ठीक है, So, चलें जी, ओके देन, टेक केयर। ओके, okay. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Okay. Thanks a lot, sir. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। And Allah Hafiz. Take care. थैंक यू, बाय बाय।